हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्ट हब टॉक्स। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सोहिल मकवाना। ही इज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एट GMERS पाटन, अ मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और उसके साथ साथ वो एक राइटर भी है, नोवेल बुक राइटर है। आज हम उनसे जानेंगे कैसे हम हमारी मेडिकल प्रैक्टिस और हेल्थ केयर प्रैक्टिस में, अगर मैं डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरापिस्ट हूँ, नर्स हूँ, और मैं फार्मासिस्ट हूँ, या कोई भी हेल्थ केयर बैकग्राउंड से हूँ, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ या फिर कहीं पे एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्क कर रहा हूँ, हमारे आसपास जो भी क्लिनिकल कंडीशंस है, पेशेंट्स की स्टोरीज है, कैसे हम उसको कंटेंट क्रिएशन में और स्टोरी टेलिंग में यूज कर सकते हैं और हमारी प्रैक्टिस को प्रमोट कर सकते हैं पॉजिटिवली, एंड we can create a very good impact. So let's talk with Dr. Sohil Makwana. We are always surrounded by stories. Rather than communicating with your patients, you can describe your disease by telling stories. So yeah, Dr. Sohil, I know you are writing a book, medical fiction story books. You have done clinical pharmacology. You are as a assistant professor in a medical college, and you develop things related to your passion about writing, और उसको कैसे books or stories में you have done it. How can a practicing doctor or a practicing physiotherapist, dentist, any healthcare practitioner who he has stories, patient stories, disease related things, how can he use his experience and this content of experience of patients and disease stories into such kind of innovative way? क्या आप उसको क्या suggest करोगे उसकी practicing के around as per your this writing experience? Yeah. Hey, we are always surrounded by stories and we always intrigued by stories. हम बचपन से पंचतंत्र से लेकर छोटे छोटे stories, मम्मी, नानी, पापा, we all are always surrounded by story, and by seeing certain stories, by reading certain stories, we learn. So storytelling is the best medium to learn something. Yeah. So if you find a number of advertisements, a short story, but at the end they are giving commandable answers, right? So it's a one kind of learning behavior. So I believe कि rather than communicating with your patients, you can describe your disease by telling stories. जो मैं करता हूँ, like if I tell कि prosopometamorphopsia या prosopagnosia, कोई भी डिसीज XYZ, उसको जस्ट सिंपल वे में भी काफी स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे इसको। तो अब प्रोसोपेग्नोसिया मतलब कि जो I cannot read a face. Okay. This is a prosopagnosia, right? मैंने आपको देखा, मैंने इसको देखा, मैंने आपको देखा, तो you are some unknown person to me, because your face will never be registered in my mind. Okay. तो आप recognize नहीं कर पाते। तो आप अपनी माँ को भी नहीं पहचानते। Okay. You just recognize your mother by her behavior, her styling, walking, fragrance, or what do you call voice, right? Yes. So if someone uses her voice or her style, you won't be able to differentiate कि see my mother or not. Okay. I'm telling about fact. ऐसी दुनिया में चीजें है। I've seen patients. I've met them. I've seen patients. Okay. This is prosopagnosia. तो अगर इसके ऊपर कोई अच्छी स्टोरी बन सकती है, राइट? तो अगर मैं ये चीजें आपको समझाऊंगा तो लोगों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन द माइंड ब्लोइंग थ्रिलर है तो लिख सकता है। लाइक तारे जमीन पर नाम की फिल्म थी, राइट? तारे जमीन पर इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया दुनिया में मोर देन 5% चिल्ड्रन को है, बहुत सारे बच्चों को है डिसलेक्सिया, लेकिन किसी को पता नहीं था। लेकिन आफ्टर सीइंग दैट फिल्म एवरीवन इज अवेयर अबाउट डिसलेक्सिया। स्कूल टीचर, स्कूल टीचर को भी पता नहीं था डिसलेक्सिया होता है। सारे वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी थ्रू स्टोरी टेलिंग। यस, तो मेडिकल थिंग्स। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ स्टोरी टेलिंग ना। तो वी बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट और
nursing graduate or physiotherapist, and even you have number of stories like कि अल्जाइमर्स में क्या होता है, पार्किंसंस में क्या होता है, तो you can aware patients by creating a small story. like आप छोटी रील बना के भी कर सकते हो, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, रील बनाओ, साइन सिम्टम्स के रील बनाओ, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, मार्केटिंग के लिए भी नंबर ऑफ स्टोरीज कैन वर्क. Is this clinical condition based on surrounding your book? कौन सी? One of the book हाँ, also? कौन Yes, सी yes. book है? वंडर वुमन या Wonder Woman. Yeah. Yeah, okay. मेरी सारी बुक्स, सारी स्टोरीज सब मेडिकल फिक्शन ही है. आई इनकॉर्पोरेट अ वेरी बिजार डिसीज जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, उसके ऊपर मैं लिखता हूँ. तो आई लाइक टू टॉक अबाउट वंडर वुमन. चलो, तो वंडर वुमन यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, वो पूरी दुनिया के सारे लोग उस इमोशन के साथ अटैच है. Okay. लेकिन एक भी नॉवल, एक भी फिल्म, एक भी डॉक्यूमेंट्री उस पे बात नहीं कर रही आज तक. Yeah. किसी ने बात को इनिशिएट नहीं किया. क्या है वो? आपको ब्लड डोनेशन पता होगा, राइट? हाँ, right. आपको स्पर्म डोनेशन नहीं पता है, Yeah. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन. Okay, हाँ. ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है. और बच्चा जो होता है, अगर उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई है, या मम्मी को दूध नहीं आ रहा, हाँ, या कैंसर हो गया, lactating ब्रेस्टेक्टोमी कर दी, मस्टेक्टोमी कर दिया, लैक्टेशन नहीं है, तो इन सच सिचुएशन में काउ मिल्क देना है या फॉर्मूला मिल्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट फॉर द Yeah. थ्राइविंग ऑफ बेबी, राइट? तो माँ का दूध तो माँ का दूध ही होता है. Other Yes. mother हाँ, can they can help that child. तो ये वंडर वुमन इज अ स्टोरी ऑफ अ लेडी. शी इज स्टैंड अप कॉमेडियन and she is suffering from a bizarre disease. And because of that disease, she starts giving रोज का 10 लीटर, रोज का 15 लीटर, और खुद का Excessive हाँ, lactation and all. More. खुद का मिल्क बैग बनाती है. सो इट्स नॉट इजी. उसकी स्ट्रगल है कि हाउ शी फाइट्स विद सोसाइटी, हाउ शी गेट्स सपोर्ट फ्रॉम हर सुपीरियर्स, एंड हाउ शी गेट्स. लेकिन वहां स्टोरी खत्म नहीं होती. yeah. जब हीरो के पास, सुपर हीरो के पास पावर होता है, तो वो पावर छीन लिया जाता है. अगर थोर के पास हैमर है, जोलिन, Yeah. राइट, तो थोर है, लेकिन थोर हीरो कब बनता है? जब उसके पास पावर नहीं है और लोगों को बचाता है, राइट? तो दैट काइंड ऑफ स्टोरी द गर्ल इज. एक लड़की की कहानी है, हाउ शी इज हाई, हाउ शी फॉल्स, हाउ शी रिटेलिएट्स एंड सर्व्स द मैनकाइंड, सर्व्स द ह्यूमैनिटी, एंड बिकम्स द वुमन ऑफ द डेकेड. और इट्स ट्रू स्टोरी. Oh. और अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में 15 ब्रेस्ट मिल्क बैंक है, हाँ. 15. और अगर हम देखें तो 20% फीमेल्स आर ओवर प्रोड्यूसर्स. तो अगर वो चाहे तो डोनेट कर सकते हैं. अहमदाबाद में एक ही है ब्रेस्ट मिल्क बैंक, बड़ौदा में एक है, पूरे गुजरात में 2 ब्रेस्ट मिल्क बैंक है. किसी को पता ही नहीं है. अगर आप I don't. तो अब्रॉड में देखो तो दे आर हैविंग एप्लीकेशंस. इफ यू वांट टू रिसीव मिल्क, यू कैन आस्क इफ यू वांट टू डोनेट. बट उसमें बहुत सारी चीजें भी है, क्योंकि उसमें प्रॉपर मेंटेन भी करना पड़ता है, डीएनए भी चेक करना पड़ता है, उसको कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब चीजें मैंने डिस्क्राइब किया है. Things and legal things. लीगल भी है कि So कोई फॉर्मूला that need फिल्म to be taken care, but that क्वालिटी कंट्रोल. can help many child. No, lactating phase में है वो, मतलब initial 6 months of their after born, and they need, and if they are in this situation where mother cannot be able to lactate, and it is a very good. हाँ, तो पूरा ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन के ऊपर है. ये तो सोशल मैसेज विद ह्यूमर है. लड़की स्टैंड अप कॉमेडियन है, ह्यूमर बहुत है इसमें. मेरी दूसरी जो नॉवेल है मर्डरम, वो ड्यूअलॉजी है, 2 भाग में है. उसमें भी मैंने मेडिकल नॉलेज ही इनकॉर्पोरेट किया है. वो कौन से क्लिनिकल कंडीशन? वो क्लिनिकल, मतलब इट्स अ वैरायटी ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस आई हैव यूज्ड. इट्स अ फोरेंसिक क्राइम थ्रिलर. ओके. दुनिया में ऐसे 200 से 300 सीरियल किलर्स हो चुके हैं. Those who have killed more than 100 people. Oh. There was a doctor named Dr. Harold Shipman. He had killed 251 women. But it must have taken years to reach he was that killing. number of. He has been right? killing. He had been killing for almost 30-40 years. लाइफ स्पान पूरा. ओल्ड एज फीमेल को हाई डोज मॉर्फिन देके, वो हाई डोज पेंटाजोसिन
पैथिडीन देके वो फिर पता चला लोगों को। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। सो आई हैव जस्ट स्टडीड ऑल द सीरियल किलर एंड गिव अ बर्थ टू अ मेटा मॉन्स्टर, जो सब सीरियल किलर का बाप है। तो एक वो बना, उसको भी एक बीमारी है और एक क्लिनिकल कंडीशन है जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे। और व्हेन देयर इज अ विलन देयर इज अ हीरो। वो मेरी हीरोइन है, इट्स अ लड़की, नेम इज कोमल मजबूत सिंह राठौड़। कोमल है लेकिन मजबूत है, अंदर से मजबूत है। एंड शी इज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट, शी हैज पास एमएससी एंड शी वांट्स टू बिकम अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर इन सीबीआई, बट इट्स नॉट इजी टू एंटर इन सीबीआई, राइट। तो वो 3-4 साल से अटेम्प्ट कर रही है, एग्जामिनेशन देके उसका क्लियर नहीं हो रहा। बट 2020 में सीबीआई वालों ने एक प्रोग्राम निकाला, इंटर्नशिप इन सीबीआई, ओके, जिसमें सिर्फ 30 लोगों को अलाउ करते हैं। 2020 में फर्स्ट बैच निकला था, 21 में भी निकला। ये इट्स अ ट्रू वन। हाँ, ओके। तो 30 बच्चों को इसमें इंटर्नशिप मिली एंड सी गेट। इंटर्न को हम क्या काम देते हैं? बस जेरोक्स करा के लाओ, ये फाइल वगैरह है उसको तो अरेंज कर दो। she is given a task to collect survey, कि तुम जाओ वेरियस पुलिस स्टेशन एंड सर्वे करो क्या क्या कोल्ड मर्डर केसेस की इंफॉर्मेशन जो भी है। तो शी जस्ट विजिट्स ऑल द पुलिस स्टेशन एंड पुलिस आर बिजी, इसका पासपोर्ट बनवाना है, इसका बाइक चोरी हो गया, उसके घर से भाग गई या चोरी, तो पुलिस बोलते रहा कर दो, फट 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 करके अब भगा देती है। तो पुलिस आर नॉट कोऑपरेटिव, बट शी गॉट एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड रूम होता है, तो वो फाइल वगैरह चेक करती है हर एक पुलिस में जाकर। देन नाउ शी एस्टैब्लिश्ड अ लिंक, देयर इज a heinous serial killer is existing from certain years, but no one is aware about. And now her hypothesis is being generated, and she establishes all the clues and connect the dots. She connects all the dots and generate hypothesis. तो पुलिस वाले सोचते हैं, और तब भी एक मर्डर भी होता है एंड वो प्रूफ होता है कि ये सब डॉक्टर जो किलर के सिग्नेचर्स होते हैं, जिसको मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, तो उसके ऊपर पता चलता है। नाउ शी कम्स ऑन द बोर्ड एज शी हैज क्लियर्ड दैट सीबीआई एग्जाम एज वेल, नाउ शी इज अ चीफ, नाउ हर हंट्स बिगिन। तो ये पूरी, उसमें भी बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज की है। लाइक एक सीन है जहाँ क्राइम सीन है और वो लड़की वहां पे है और किसी को कुछ नहीं मिलता, तो सब डिसअपॉइंटेड। लेकिन एक मच्छर होता है वहां पे, तो शी गॉट्स एंक्सियस के वाओ, और मच्छर को ट्रैप कर देती है। तो पुलिस बोलती है कि अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्लू है, क्या मस्ती कर रहे हो, ऐसा थोड़ी क्लू होता है। तो समझाती है कि ये मच्छर जो है वो फेड है, वो ट्रांसइल्यूमिनेट करती है, उसका बेली फुला होता है, रेड कलर है, दैट मींस ब्लड इसके अंदर है, बाइट किया होगा। अब क्राइम सीन पे कौन होता है? या तो विक्टिम होगा या किलर होगा। नाउ शी एक्सप्लेन्स का मॉस्किटो कैन नॉट बाइट डेड बॉडीज, और ये फ्रेशली फेड मॉस्किटो है। तो वो समझाती है कि मॉस्किटो कैसे अट्रैक्ट होता है। दे सेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। इंसान मर गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, और एट द रेट ऑफ 1.5 फ़ारेनहाइट पर आवर से बॉडी टेम्परेचर लूज करती है, तो मच्छर उसके पास नहीं जाएगा। दूसरा, मॉस्किटो बाइट्स कैपिलरीज ऑफ द स्किन्स, डर्मल कैपिलरीज, उसमें शक करता है। लेकिन जैसे इंसान मरता है, कैपिलरी श्रिंक्स, वो ब्लड जो होता है वो पेरिफेरल में से कोर कंपाउंड में चला जाता है, तो वहां ब्लड भी नहीं होता। तो मॉस्किटो कैन नॉट बाइट डेड बॉडीज, तो बचा कौन? लिविंग किलर जो भी तो है वही। अब जो टाइम होता है वो भी ऐसा है, वो उसकी बाइटिंग पैटर्न समझाती है कि एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, वो अर्ली मॉर्निंग में बाइट करते हैं, और ये अभी 11 बजे, दैट मीन्स, और मॉस्किटो के पेट में 10 घंटे तक ब्लड ऐसे रहता है, फिर डाइजेशन में जाता है, दैट मीन्स दिस इज। तो ऐसी लॉजिकल चीजें से वो चीजें, दिस इज फोरेंसिक मेडिसिन, यस राइट। तो फोरेंसिक एंटेमोलॉजी, दिस इज अनदर ब्रांच। फोरेंसिक तो है, फोरेंसिक एंटेमोलॉजी मतलब जो जी क्रिएचर्स, कीटक बोलते हैं, जो छोटे छोटे, उसके मदद यूज करके भी हम क्राइम सॉल्विंग, हाँ, कि भाई अगर डेड बॉडी को 48 आवर हुआ है तो इस टाइप के बीज आएंगे, अगर 12 आवर्स हुआ है तो इस टाइप के क्रिएचर्स उसके पास होंगे। सच काइंड ऑफ मेडिकल नॉलेज whoever the healthcare professionals are practicing, they can use it for
education, for promoting their practice, connecting with the patients, awareness. It's a very good initiative and a part of. Yes, and yes. for the, it's a, I would say it's a win-win situation. I mean, doctor can reach out to the patients with their stories, and patients also remember that clinical conditions and diseases and treatment options through the stories. तो Yes, वो yes. लंबे टाइम तक उसको याद रखेंगे, और उस डॉक्टर को भी याद रखेंगे जिसने स्टोरी. yes even in our students, like अगर हम देखेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी, तो हम 4-5 पिक्चर साइकेट्रिक की रिकमेंड करते हैं, लाइक अ ब्यूटीफुल माइंड, ब्यूटीफुल फिल्म फॉर स्किज़ोफ्रेनिया, तारे ज़मीन फॉर डिस्लेक्सिया. देयर इज वन मोर फिल्म नेम इज अवेकनिंग्स. इट्स अ क्लासिकल स्टोरी फॉर पार्किंसंस डिसीज, की पार्किंसन डिसीज की ड्रग इवोल्यूशन कैसे क्या हुई. होता है. Okay. शटर आइलैंड इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल फिल्म. तो फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टाइम पास ही है. लर्निंग थ्रू एंटरटेनमेंट. But yeah, now is the time that we should build such kind of Agreed. content. Even- It must, I mean, और फोरेंसिक में भी बहुत स्कोप है. हाँ, अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि यू कैन एक्सट्रैक्ट ब्लड फ्रॉम ह्यूमन मॉस्किटो स्टमक. उस स्टमक में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करो और उस डीएनए से फेस जनरेट करो, जो मैंने दिखाया है मेरी नॉवल में. हाँ, हाँ, तो इफ यू फाइंड अ मॉस्किटो एट द क्राइम सीन, ब्लड निकालो, ब्लड में से डीएनए, डीएनए में से, तो अगर हम लोगों ने एक हैंडशेक्स किया, राइट, तो आपके हाथ में भी मेरा डीएनए आ गया, उसमें से मेरा फेस जनरेट कर सकते हो. अगर हम मिले नहीं तब भी हाँ, राइट. तो अगर मैंने ये टच किया है माइक्रोफोन, तो इसमें मेरा डीएनए है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके मेरा फेस जनरेट हो जाएगा. फोरेंसिक एडवांसमेंट बहुत हाई है. तो फार्मेकोजेनेटिक्स, फोरेंसिक जेनेटिक्स, फोरेंसिक साइकेट्रीज અને બાકી सब जो फोरेंसिक की ब्रांच है इज अ forensic dentistry also. one यस of यस the आई हैव मेंशन, specialty. मेरे में ये भी है. सो बाइट मार्क एनालिसिस भी है. आई हैव यूज्ड अ नंबर ऑफ थिंग्स इन मर्डरम डियोलॉजी. और जो मर्डरम की बात है ना, वो एवरी मेडिकल स्टूडेंट शुड मस्ट रीड, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सीखेंगे सीखेंगे. जो फर्स्ट ईयर सेकंड Different aspect उसमें. तो ये सभी होता है दुनिया में. तो मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ. और नंबर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स हैव गिवन फीडबैक कि सर हम कभी नहीं भूलेंगे ये सब चीजें, लाइक पीएसएमसी, लाइक. और ऐसी चीजों से क्या है कि अगर कोई सेकंड ईयर एमबीबीएस का बंदा ये सोच रहा है, या उसने ये सब आपकी नोवेल पढ़ी है, तो क्योंकि उस सेकंड एमबीबीएस में ही फॉरेंसिक मेडिसिन एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आ रहा है, भले ही उसके एकेडमिक्स में या एग्जाम के रिलेटेड ये सब चीजें कम होगी, बट ही कैन रिमेम्बर द फॉरेंसिक एस्पेक्ट इन विद द मेडिसिन वेरी वेल. वही फंडामेंटल है. तो लर्निंग विथ एंजॉयमेंट, लर्निंग विद, अगर मैं 5-6 चीजें बोलूंगा तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं उसको स्टोरी में कन्वर्ट करके समझाऊंगा तो वो कभी नहीं भूलेंगे. अच्छा हाँ ये देखा था. तो ये बात है. That's it. So yes, I hope that as many as medical professionals, healthcare professionals will start creating such kind Yes, of yes. content and stories around their experience, Must clinical be. diseases, Everyone should have etc. हाँ, स्टोरीज तो सबके पास है, हाँ, छोटी बड़ी, लंबी छोटी, खुद की स्टोरी, बट एंटरटेनमेंट नहीं है. हाँ. उसको इंटरेस्टिंग तो, और एंटरटेनिंग बनाओ, लोगों को समझ आएगा. सिंपल फंडामेंटल है. थैंक यू सो मच. thank you so much. नेक्स्ट टाइम.